हाँ, yesterday we were talking about the fundamental definitions like data processing and information. Okay, there are three fundamental definitions associated with the definition of computer. Okay, let's move further. Uh, the book suggested for you is uh, Computer Science, CIENC, Science, SCI, or Informatics Practices. This is for IP and this is for CS. Uh, this book would be purchased by science students and this is for commerce students. Okay, by Sumita Arora. सर खरीद लिए अभी। हाँ, वेरी गुड। जो नहीं खरीदे उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। यस सर। आप खरीद लीजिए इस बुक को, अगर खरीदे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी बुक को हम फॉलो करेंगे। ठीक, तो yesterday we have come to know the basic definitions. Now coming back to the block diagram of computer. This is the block diagram. This is very important diagram. Actually, from time to time, with the processing of program and other things, we will take the reference of this diagram. Okay, so this is the input, this is the memory, this is the output, and this is the processor. Okay, so define separately one by one. So input device is a kind of device which takes input from user. For example, keyboard is called standard input device because of if we don't have any input device, suppose we don't have mouse, we don't have mic, we don't have touch screen and so on, but if we have keyboard, we would be able to perform maximum task related to computer. That's why it is called standard input device. Rest input devices are suppose mic, okay, touch screen pad, you may write like this. So these are the other input devices. Mouse, hello सर जॉयस्टिक। हाँ, joystick for playing games, joystick. Okay, so there are many input devices. From time to time you would come to the interaction. Next we discuss output device. Okay, the device used to take output. एग्जाम्पल है इसका मॉनिटर is the standard output device because of the same reason as discussed with reference to keyboard. If we don't have any output device, we have monitor,
we would be able to perform maximum computer related tasks. As you know very well that by using monitor we can see output. Uh, if other are available, that other devices are conditional Printer. device. For printer example, very good. Printer is a conditional device. If we want something hard copy, we need printer, otherwise not. आगे प्रिंटर के बाद कुछ बोल रहा था ना Sir, कोई? speakers. स्पीकर फॉर वॉइस. ओके, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, Sir, स्पीकर. fax. फैक्स मशीन. Sir, हाँ fax. हाँ, फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन है, ठीक है, दैट्स ओके. फैक्स से भी प्रिंटर ही प्रिंटिंग निकलता है. एक प्लॉटर लिख लीजिए. प्लॉटर भी प्रिंटर ही होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर आती है. दिस इज अ बिग साइज प्रिंटर. एक्चुअली प्रिंटिंग इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर A4 साइज प्रिंटिंग. there are poster printing and something else. So plotter is just a printer which is a very big size printer, that's given a different name, plotter. Okay, next we are coming to memory devices. Storage devices are called memory devices. हाँ, for storage purpose only. So this is the detailed discussion. Actually, memory is of two types. Okay, we also have memory. Every human being have memory, or any creature have memory, whether little or small memory. But in case of creatures, memory and processor are built together. Okay, you may understand the concept very well, that your head is a place where memory and processor both are placed. There are not two different places. So whatever you store in memory, you process as well. Actually it is called, there are many parts of brain. So a part of brain is memory and another part of brain is processor as well. So computer is a device which is inspired from human being. It works like that. So there are two types of memory, but prior to this discussion of memory connected to human being, connected to computers, I would like to discuss little bit about the human memory, human brain. So how many types of memory a human being possess? So लिखिए, there are three types of memory. This is a discussion which is not of main course. I am drawing a line here, okay, across this screen. Okay, so three types of memory a human being holds. Number one is conscious memory. Conscious memory. Let me check the spelling. Just a moment. Conscious. Okay, here is that course here.
CI number 2 is unconscious memory, and number 3rd is dead memory. There are 3 types of memory a human being possess. So conscious memory is what? Whatever you learn, whatever you see, actually not learn, whatever you see and understood by you, it is because of the content is goes to conscious memory, and after processing you are able to understand. For example, you are walking through a road, okay, you are walking through a road, and on the left side of road or right side of road you are looking some kind of shop. Suppose there is Domino's pizza store or something else. There may be many shops, many other things, a tree, a vehicle, anything, okay. So suppose you are walking in some unknown city, you are living here in Shaktinagar, and you have gone to Delhi for some work, and just you are walking on some road of Delhi. You are walking on the path, here you are walking, okay, you are identifying that on left side some shop is there, and on right side some trees here, this is some shop, this is some tree, some vehicle passed through the road, okay. So these are the things actually. You are in position to understand that this is a shop, this is a tree, and this is a vehicle. I am taking 3 examples only, okay. This is a vehicle, because of you have, because of this all because of you know, you are the data being processed by your processor, your brain, and after processing it gives information that this is a shop, this is a tree, this is a vehicle. Why? Because of the information, the definition of shop is pre-loaded in your brain. मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? हेलो, Yes, sir. हाँ देखिए, हम ये जानते हैं पहले से कि शॉप क्या होती है, हम ये पहले से जानते हैं कि ट्री क्या होता है, हमें पहले से जानते हैं कि व्हीकल क्या होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या करता है कि प्रोसेसर जो ब्रेन है उससे मैच करवाता है जो प्री स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, उस मैचिंग के बेसिस पर हम जान जाते हैं कि ये शॉप है, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइए कि अगर नेक्स्ट डे आप लोग, नेक्स्ट डे नहीं मतलब मान लीजिए वहाँ से आप आ गए वापस, तो आप क्या उस रोड को याद रख पाएंगे, उस प्लेस को एग्जैक्टली कि आपने कहाँ देखा था उस चीज को? नो सर, नहीं याद रख पाएंगे। जगह चेंज भी हो जाएगी। नहीं, जगह चेंज ना भी हो तब भी ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक बार जिस रास्ते से जा रहे हैं उसकी जो भी हमने देखा हो सब याद रख ले, ये सब ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। यस सर। This is because whatever we are looking that goes to our conscious memory. Conscious memory में क्या है, एक बार गया फिर वहां से डिलीट हो गया, तो this memory is equivalent to primary memory of computer. अभी मैं और डिफाइन करूंगा। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को सब कॉन्शियस में ट्रांसफर कर दें तब वो चीज़ हमारे पास परमानेंट रहेगी, ठीक है ना। अगर हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉन्शियस में है उसको अगर सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो जाए किसी तरीके से, तो अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस, ठीक है ना। अगर हम उसको अनकॉन्शियस मेमोरी में या सब कॉन्शियस भी कहा जाता है इसको, अगर उसमें ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ परमानेंट हो जाएगी। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है, जैसे आपका पेन ड्राइव है, आपका हार्ड डिस्क है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें सेकेंडरी
सर SECD। सीडी सर सीडी हाँ कह रहा था। CD भी है, बहुत सारे हैं। ओके, तो DVD CD ये सब, ये मतलब सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है, ठीक है ना। आपको अगर परमानेंट स्टोर करना हो तो इसी में स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो चीज़ कंप्यूटर के रैम में है वो चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। अच्छा, ये चीज़ ट्रांसफ़र कैसे होता है? अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसके लिए वर्क करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं टीवी पर लाइव, ठीक है ना। तो आपको पूरा क्रिकेट का मैच याद रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन कुछ सीन्स उस मैच के याद रह जाएंगे, ठीक है ना। कुछ सीन्स मैच के याद रहेंगे, जैसे कोई विकेट गिरा या कोई बहुत ऐसा शॉट मारा जो कि बहुत अच्छा लगा आपको, वो शॉट आपको याद रहेगा। कोई विकेट, मतलब जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा वो चीज़ आपको याद रहेगी। हेलो, ऐसा है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो जो चीज़, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज़ बड़ी आसानी से अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, बहुत ईजिली। तो इसका मतलब यह है कि हमें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। इंटरेस्ट डेवलप कब होता है? जब वो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, ठीक है। हाँ, ठीक है, डेवलप हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम सपोज करो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट चीज़ों में कब डेवलप होता है? जब वो चीज़ हमें समझ में आती है, ठीक है ना। अब मैं यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को ये ना पता हो कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, या आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो सपोज करिए मैथ में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ax² + bx + c = 0। अब किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना पता हो तो उसका जो फर्दर डिस्कशन होगा, ये सब समझ में उसके नहीं आएगा, इसलिए कि उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? क्योंकि ये जो भी डिस्कशन किया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको उसका प्री नॉलेज ही नहीं है उसमें। तो हमें वही चीज़ याद रहती है जो कि अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ये ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस ईजी से लेके डिफ़िकल्ट तक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका नॉलेज लेवल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। सपोज करिए कि एक बच्चा है, क्लास 5th में है, उसे मल्टीप्लिकेशन, उसको डिवीजन नहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो डिवीजन डायरेक्ट नहीं आएगा उसको, उसके लिए पहले उसको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से पहले उसको एडिशन आना चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तब ना डिवीजन आएगा। सपोज करिए कि कोई बच्चा 5th में पहुंच गया है और उसको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रहा है, उसको एडिशन भी नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है उसको डिवीजन को समझ में नहीं आएगा। और समझ में जब नहीं आएगा उसका डिवीजन, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसको छोड़ के भाग जाएगा वो। तो उसका तरीका यह है, या तो छोड़ के भाग जाए या तो मेहनत करके उसको सीखे, वो मल्टीप्लिकेशन सीखे, डिवीजन सीखे। तो जब ये चीज़ें सीख लेगा तब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि वो डिवीजन को सीखे। जब उसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन आ जाएगा तब वो इंटरेस्ट लेके डिवीजन को सीखेगा, तभी वो उस पोजीशन में होगा कि वो अपने कॉन्शियस में जो उसके आ रहा है उसको सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर सके। ये हम सभी के साथ होता है। आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब है कि आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना सबके लेवल पे अलग अलग होता है। हम कहते हैं कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, ठीक है ना, दे आर वेरी गुड इन देयर स्टडीज़, तो वो गुड अचानक थोड़े बन गया है, वो ऐसे बैठे बैठे गुड नहीं बना है। वो
वो पहले से उसने वर्क किया है, हाँ पहले से वर्क किया है कि उसको 11th की मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो उसको 10th की मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। जैसे ही उसका 10th के मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तब उसको इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको इंटरेस्ट उसका डेवलप हो जाएगा, और वो जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ईजिली वो कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट में मेमोरी का इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाएगा। और जिसको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है उसको समझ में नहीं आएगा, और वो फिर क्या करेगा, भाग जाएगा उससे, या तो भाग जाएगा, दूसरा तरीका है कि वो वर्क करे और उसके बाद वो उस लेवल पे आए, ठीक है ना। जैसे आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, बहुत ही फंडामेंटल टाइप की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। अब देखिए, अब मैं एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये होता है ना। यस सर। साइन और टेन के साथ ये बात नहीं है, लेकिन cos के साथ है। ऐसा क्यों होता है, कितने लोगों को पता है यहाँ पे? सर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस थीटा पड़ता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस थीटा। नहीं, ये तो रट लिया ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस थीटा, नहीं क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है इसको। cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा, जैसे cos माइनस 30 इक्वल टू cos 30 हो जाएगा, cos माइनस 180 इक्वल टू cos 180 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, थीटा तो जस्ट एंगल है यहाँ पे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, समझ में अभी किसी के पास आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। जानते हो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब 11th में आप लोग पढ़ेंगे ना, तो 11th के बाद आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे 12th के बाद, इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। कुछ लोग और फील्ड में जाएंगे, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम होगा इंजीनियरिंग वगैरह में, एंट्रेंस में, वो इस टाइप के कंसेप्ट पर फ्रेम हो जाएगा क्वेश्चन। वो आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ के जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उस पर वो नहीं फ्रेम होता है क्वेश्चन, वहाँ पे कंसेप्चुअल जो आपने कंसेप्ट बिल्डिंग है उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी तो आप उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप इंजीनियरिंग की सपोज करिए कोई कोचिंग करने चला गया, लोग कोचिंग करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे जो पढ़ाने वाला रहेगा वो तो ये मान के चलेगा कि ये आपको पता है कि ये क्यों होता है। अब वो अपना डिस्कशन इससे आगे लेके चला जाएगा। तो आपको यही नहीं पता है तो आप क्लास में बैठे रहेंगे तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, तो आपको फिर लगेगा कि ये कोचिंग तो बेकार है, मतलब कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, यहाँ से ये बेकार है, मतलब यहाँ बैठ के हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि टाइम वेस्ट ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो एक लेवल को अटेन जो कर लिया है उसको तो फ़ायदा होगा, जो इस टाइप के कंसेप्ट को जानता है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो इस टाइप के कंसेप्ट को नहीं जानता है उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका बस पैसा वेस्ट हो जाएगा, और वो मतलब उसका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, सब होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है ना। तो ये चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट में ट्रांसफ़र करिए, जो भी पढ़ाया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के साथ पढ़िए। ओके, तो हम आते हैं हमारे मेन कोर्स पर। देखिए ये सब हटा देते हैं हम, ये सब हटाते हैं। ओके, ये सब हटाइए। ओके, ये सब हटा देते हैं यहाँ, फिर ठीक है। देखिए ओके, तो कॉन्सेप्ट, अच्छा तीसरी मेमोरी थी डेड मेमोरी जैसी चीज़ कंप्यूटर साइंस में नहीं होती है, यहाँ पे लिखा है तो इसका कर देना डिस्कशन। डेड मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें अचानक हमें कोई बात याद आ जाती है, जैसे कि सालों बीत गया किसी बात के, ऐसा सबके साथ होता है कि कोई चीज़ सालों बीत गया, उसका किसी ने रेफरेंस लिया है, आदमी ने कुछ लिया है, अचानक वो बात आदमी को याद आ जाती है, ठीक है ना। जैसे किसी से आप सपोज करिए सालों पहले मिले थे और उससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, अचानक मतलब कि मिला तो याद आ गया, अरे हम यहाँ मिले थे, ये किए थे, या ऐसी
ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि किसी पर्सन के कंटेक्स्ट में हो सकता है, किसी और भी घटना का कंटेक्स्ट में हो सकता है, ठीक है ना। कई बार होता है कि हमने सपोज करिए न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ा या टीवी में कोई न्यूज़ देखा, उसके बाद न्यूज़ पुरानी हो गई, सब भूल गए, लेकिन अचानक वो न्यूज़ फिर से सामने आती है तो पता चलता है अरे ये तो हमने देखा था, उस समय ऐसा बताया था, ऐसा होता है ना। तो ये जो चीज़ स्टोर होती है वो डेड मेमोरी में स्टोर होती है। तो डेड मेमोरी का कंटेक्स्ट कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में हम दो ही आएंगे, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस लिख लो, इन जनरल इसे सब कॉन्शियस ही कहा जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, आइए देखो, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रख ले रहा हूँ। जसवंत सिंह तक यहाँ पे है। ओके, सर बाकी मैं भी ले रहा हूँ, उसको दोबारा ले रहा हूँ। क्या बहुत फॉलो करने आजकल ही ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना हमको। JPEG अनटाइटल्ड 1 ले लिया, डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है ना। ओके, और फिर ले लेते हैं। ओके, जसवंत सिंह तक चला गया। खुशीराज ऑनवर्ड, तो खुशीराज से कहाँ तक है? अच्छा, तीसरा पेज भी जाएगा। चलो खुशीराज ले लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन। सेव स्क्रीन, ठीक है। देर आफ्टर इस पे आ जाइए। खुशीराज से प्रीति जोशी तक हो गया और साक्षी से लेके लास्ट तक, ठीक है ना। प्रीति जोशी, ओके। ओके, प्रीति जोशी कंट्रोल V, प्रीति जोशी से लेके, ओके ठीक है, इतना हो गया। ये तो अनटाइटल्ड 2 में हिट हो गया जी। चलो इसको बंद करना था, ठीक है। प्रीति जोशी, चलो प्रिंट स्क्रीन। चलिए ठीक है, हो गया, हमने कर लिया इसको। आइए चलिए, हाँ अब देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। लिखिएगा, द मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू, अरे तुम लोग क्या करते रहते हो ये सब, इससे डिस्टरबेंस हो रहा है। मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर is called प्राइमरी मेमोरी। यही डेफिनेशन है प्राइमरी मेमोरी की।
द मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है आपका, ठीक है, इसमें जो मेमोरी है ना, मेमोरी मतलब कि ये प्राइमरी मेमोरी है। बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो और ये प्रोसेसर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये मेमोरी प्रोसेसर से कनेक्टेड है। तो और आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी आउटपुट में देखते हैं वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। द प्रोसेस्ड डेटा इज सेंड टू आउटपुट इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस होनी है तो उसे कहाँ होनी चाहिए? हेलो, कोई भी चीज़ अगर हमें प्रोसेस करना है तो उसको कहाँ पर स्टोर होना चाहिए? हाँ, मेमोरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है ना। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा तो उसे प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर सकता। इट मीन्स दैट अगर आप कुछ, इफ यू आर हैविंग सम इंफॉर्मेशन इन सीडी, सपोज करिए सीडी में कोई मूवी है, ओके, सीडी में कोई मूवी है, यस सर। आपने सीडी ड्राइव में सीडी लगा दिया तो हमें स्क्रीन पर मूवी प्ले होते हुए दिखती है। हमें ये आउटपुट, ये जो मॉनिटर है यहाँ पे हमें मूवी प्ले होकर दिखती है। मूवी प्ले होने का मतलब है कि द डेटा स्टोर्ड इन सीडी इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है ना। द डेटा स्टोर्ड ऑन सीडी इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड इट्स आउटपुट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। समझ में बात आ रही है? यस सर। हाँ, तो अगर हाँ, सीडी के डेटा को प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, सीडी के डेटा को प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर सकता, तो क्या होता होगा? सीडी का डेटा आता होगा रैम में, ठीक है ना। किसी भी डेटा को प्रोसेस होना है तो रैम में आना पड़ेगा, तो सीडी का डेटा आता होगा रैम में, और रैम और फिर प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है। जो डेटा रैम में है उसी को प्रोसेसर प्रोसेस कर पाएगा, रैम में हो या रोम में हो, तो उसी को प्रोसेसर प्रोसेस कर पाएगा। तो कोई भी चीज़ सीडी में हो, पेन ड्राइव में हो, डीवीडी में हो, एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में हो, अगर उसको प्रोसेस होना है तो रैम में लाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लोडिंग। सर हार्ड डिस्क भी सर सेकेंडरी में है क्या? हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लोडिंग, मतलब कि सेकेंडरी डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी की तरफ, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की तरफ डेटा के फ्लो को लोडिंग कहा जाता है। और जब हम प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को भेजते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेविंग, ठीक है। जैसे आपने सपोज करिए कि ये अभी मैंने इमेज को सेव किया ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इमेज को सेव कर दिया, मेरी बात क्लियर हुई? तो इमेज को सेव किया, तो इमेज को सेव करने का मतलब क्या है कि मैंने रैम में, मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो उस समय वो रैम में था, ठीक ना। और जब उसको सेव कर दिया तो वो कहाँ चला गया? हार्ड डिस्क में चला गया, ठीक है। और जब उसको सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, हार्ड डिस्क में चला गया, बाय डिफॉल्ट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है। अगर आपको कोई और मतलब कि पेन ड्राइव वगैरह को यूज करना है तो वहाँ पाथ हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, अब अगर इसको हम डबल क्लिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया, तो ये कहाँ था? अभी ये कहाँ है? ये चीज़, ये जो है, ये फाइल है, ये हार्ड डिस्क में है सर, डेस्कटॉप पे, मतलब हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क में है, ठीक है ना। इसको डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब कि ये डेटा प्रोसेस होकर इसका आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। ये जो भी डेटा है उसका प्रोसेस होकर आउटपुट दिखाई दे रहा है। बात क्लियर हो रही है? हेलो, है ना? डेटा ये हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। आउटपुट दिखाई देने का मतलब कि जो हार्ड डिस्क में था, जैसे ही हमने डबल क्लिक किया वो कहाँ चला गया?
सेकेंडरी मेमोरी में। नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में तो है ही वो, डबल क्लिक करते ही कहाँ चला गया? सर रैम में चला गया, रैम से हाँ, आप रैम देख में रहे चला हैं। गया, और रैम में गया तो प्रोसेसर ने उसे प्रोसेस कर दिया। अब प्रोसेस करके ये उसका आउटपुट हमें दिखाई दे गया। सब समझ में आता ही? यस सर। टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका डायग्राम, और इसकी अंडरस्टैंड, इसका मतलब कि जैसे प्रोसेसिंग को समझना कि हाउ डज इट वर्क्स, दिस इज ऑफ क्विंटेसेंशियल इम्पोर्टेंस। सो हम इस पर आते हैं। ओके, तो द मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप हैं, रैम और रोम। रोम। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, द मेमोरी, हाँ कोई भी, वो तो हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल है ना। द मेमोरी नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर, ठीक है ना। द मेमोरी विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। बात क्लियर हुई? द मेमोरी विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोसेसर इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो यही है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का होता है, रैम, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, रैंडम, लिख दूं यहाँ पे, एक्सेस मेमोरी। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका है, बोलो, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना। रैम के फंक्शनिंग को आप लोग जानते हैं, रोम पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। एक्चुअली रोम जो है वो मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसमें प्रोग्रामिंग करके हमें देता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सब चेक करता है कि आपका कीबोर्ड, माउस ये फंक्शनल है कि नहीं, ठीक है, सब कुछ चेक कर लिया। ओके, इसमें रोम में ही कमांड लिखा होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में इंस्टॉल करे। तो जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपका विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, रैम में लोड होता है, ठीक है ना। इसके बाद रोम का काम खत्म हो जाता है, इसके बाद हम रैम के थ्रू एक्सेस करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोग्रामिंग रोम में लिखा होता है। और रोम में मतलब कि टाइमिंग, जैसे हम कंप्यूटर जब बंद कर देते हैं लेकिन उसकी टाइमिंग बंद नहीं होती है, उसका टाइमिंग चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता रहता है। तो एक्चुअली एक CMOS बैटरी होती है, CMOS बैटरी होती है, वो हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है ना। मदरबोर्ड के स्लॉट में फिट होती है CMOS बैटरी, छोटी सी गोल सी बैटरी होती है, वो थ्रू आउट डे एंड नाइट 24 आवर्स एकदम ऑन रहती है, वो सप्लाई किए रहती है उसमें मदरबोर्ड में, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रोम का जो प्रोग्राम है वो चलता है। और जब भी आप खोलेंगे ना कंप्यूटर, रोम का प्रोग्राम नहीं चलता, मतलब जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे तो रोम का प्रोग्राम एक्टिवेट होकर टाइमिंग को नोट कर लेता है, ठीक है ना, टाइमिंग को दिखाता है हमारा। तो रोम का काम यही है। रोम सिर्फ कंप्यूटर में यूज नहीं होता है, रोम चिप बहुत सारे डिवाइसेस में लगती है। जैसे आपने एसी रिमोट कंट्रोल से हैंडल हो सकता है ना, टीवी, यस सर। टीवी, यस सर, वॉशिंग मशीन, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉय हुआ, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इमेजिन कर लीजिए। तो इसमें ये प्रोग्राम्ड होते हैं सब डिवाइस, ये सब डिवाइसेस प्रोग्राम्ड होते हैं। इसमें मतलब कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे एसी में कुछ फंक्शंस होंगे वो करेगा, जो भी उसमें फंक्शंस दिए जाएं 10-20 जो फंक्शंस होंगे वो परफॉर्म करेगा। टीवी में रिमोट होता है, रिमोट के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करता है।
तो ये एक्चुअली होता क्या है, एक रोम उसमें चिप होती है, इन सब डिवाइसेस में एक चिप होती है, मतलब मेमोरी होती है, रोम चिप बोलते हैं उसे। उस रोम चिप में मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपना प्रोग्राम लिख के, अपना प्रोग्राम एक बार लिख के उसको उस डिवाइस के मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर देता है, ठीक है ना। आप देखेंगे टीवी हो, चाहे एसी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी, उसमें सब में प्लेट होती है जिसमें पूरी सर्किटरी फिक्स की जाती है, तो उसी में रोम चिप एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो रोम चिप के प्रोग्राम को प्रोसेसर प्रोसेस करता है और उसमें जितना भी लिखा होता है, मतलब कोई टीवी आपके 100 फंक्शंस वाला होगा, कोई टीवी 50 फंक्शंस वाला होगा, कोई टीवी 10 फंक्शंस वाला होगा, ठीक है ना। तो जितना भी उसके कमांड है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। मेरी बात क्लियर हुई? 10, 20, 50 जो भी कमांड होंगे उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये सारी डिवाइसेस जिसमें रोम चिप फिक्स होती हैं, these devices may be coined as a computerized devices। ये कंप्यूटर नहीं है, they may be referred as computerized devices। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। AI बहुत आजकल तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो AI का मतलब यही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के बेसिस पे आपका आउटपुट आता है। तो उसमें कुछ जैसे कि जो सिचुएशन होती है ना रियल लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोग्राम किया रहता है कि ऐसे करेंगे तो वो ऐसे रिस्पॉन्स करेगा। तो अकॉर्डिंग, जैसे हमारा मोबाइल है फेस अनलॉक, तो एक बार आप फेस रिकॉग्नाइज करा दीजिए, वो फेस अनलॉक कर लेगा आपके, मतलब कि रीड करके आपके फेस को मैच कराएगा, वो आपके डिवाइस को ओपन करेगा। ऑटो ड्राइविंग कार भी था। तो ये रोम, हाँ बहुत सारा। तो ये रोम चिप का यूज इस तरीके से बहुत वास्ट यूज है रोम चिप का। रोम चिप का यूज कंप्यूटर में तो हो ही रहा है, बाकी बहुत सारे डिवाइसेस में रोम चिप का यूज होता है और उसमें छोटा सा प्रोसेसर होता है, उसको प्रोसेस करता है। तो ठीक है, हम इसको कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करें।